Thank you so much for your patience, and I welcome you all on behalf of Association of Muslim Professionals. As we all know that today we are here to know how to plan after NEET results. So most of the students, after appearing for HSC and passing their NEET exams, many students are still confused with a further course of action. So this webinar will help you to make an informed decision. But before we start the live session, I would request Mr. Muhammad Firoz Sheikh to do a tilawat Quran so we can start the session. Assalamu alaikum to everyone. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. Thank you so much, Mr. Firoz Sheikh. So before we start the live session, we will take a few more minutes of yours so we can do a short introduction of Association of Muslim Professionals. So AMP stands for Association of Muslim Professionals. AMP is registered in India, USA, UK, and Australia as a non-profit organization. We have completed 12 years serving community in the field of education, employment, and empowerment, and we have a vision to positively impact lives of 10 million people by 2030. Our mission is to empower the underprivileged for the greater benefit of the society in general and nation as a whole. And AMP's vision is to be model community, which is advanced in education, socially progressive, culturally vibrant, politically influential, and economically dynamic. AMP basically works under 5 major domains, which is school development programs, employment assistance cell, scholarship and self-employment, AMP Resource Center, and we also have awards and partnerships. So what we have achieved in past 12 years is right in front of you. I would just request each one of you to just have a glance through this page so we can move further. AMP has recently launched 2 new initiatives, which is namely indiazakat.com and indiamentors.com. Indiazakat.com is India's first zakat crowdfunding platform floated by the Association of Muslim Professionals with a view to bring the zakat seeker and zakat giver on a unified platform. Its objective is to undertake its operations purely with the intent of bringing socio-economic transformation in the lives of people without seeking to generate any commercial surplus. And the indiamentors.com strive for the development of a vibrant and progressive student community in India. To achieve this, AMP tries to reach out to every needy student of India through the medium of education, career guidance, and employment assistance. The indiamentors.com envision a fully educated and empowered student community where no one is left out of the wheels of progress and development due to lack of awareness and guidance. About AMP's reach, we are present on ground in more than 100 plus active chapters. They are spread across 25 states. We have active volunteers in 16 countries, and we have got more than 6,000 plus active members connected on ground. We have online presence of 125,000 plus members and professionals who are connected through various social media platforms like Instagram, Facebook, Google, LinkedIn, and WhatsApp. If you wish to join AMP, you can just log on to www.ampindia.org/AMP, and we would be glad to have you on board with us. So now, before we move further, I would like to introduce you all to the speaker of the day, Mr. Muzaffar Khan. He is an engineer by education, but his passion is in medical education counseling. He counsels for undergraduate and postgraduate students. Mr. Muzaffar has been doing counseling for medical students for over 8 years.
Although I would just like to inform you all, he's not feeling well at the moment, but although despite of his health condition, he decided to conduct this webinar only so that students get benefited. So Muzaffar Saab, we really appreciate your efforts, and I now request Mr. Muzaffar Khan to please take over the session and guide us with his expertise. Thank you. अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ उस परवरदिगार के लिए जिसने हमें पैदा किया और तमाम जहानों की खुशियों से हमें नवाजा। करोड़ों दुरूद और सलाम हो हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। देखिए, मेडिकल प्रोफेशनल के अंदर अमंग द पेरेंट्स और स्टूडेंट में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है और मिसकंसेप्शन है कि जो मेडिकल फील्ड है जो वो सिर्फ यहाँ पर जीनियस स्कॉलर गुड स्टूडेंट के लिए है। यहाँ पे अगर एवरेज कोई स्टूडेंट है और बिलो एवरेज कोई स्टूडेंट है तो उनके लिए यहाँ पे कोई भी फील्ड नहीं है। मगर ये हमारे बीच में गलतफहमी है। अगर मेडिकल फील्ड में अगर कोई जीनियस और स्कॉलर स्टूडेंट है तो उसके लिए यहाँ पर एमबीबीएस कर सकता है, बीडीएस कर सकता है। और अनफॉर्चुनेटली अगर वो ऐसा स्टूडेंट नहीं है और उसने नीट क्रैक किया हुआ है और उसके मार्क्स अगर समझो थोड़े कम भी आए हैं तो बहुत सारे यहाँ पे फिजियोथेरेपी के कोर्स है, ऑक्यूपेशन थेरेपी के कोर्स है, ये सारे कोर्सेज में वो जा सकता है। और अच्छी बात ये है सारे कोर्सेज की ये है कि सारे जो कोर्सेज भी है बहुत सारे जॉब ओरिएंटेड कोर्सेज भी है। ऐसा नहीं है कि ये कोर्सेज करने के बाद आपको कोई जॉब वगैरह नहीं मिलेगा। अभी तो आपने देख लिया कि पैंडेमिक के टाइम के अंदर पैरामेडिकल स्टाफ की बहुत ज्यादा जरूरत थी हमें और बहुत ज्यादा शॉर्टेज दिखी है। तो मेडिकल फील्ड में ऐसा नहीं है कि आप अगर नीट में आपके पास कम मार्क्स भी आए तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, हमेशा रहते हैं। और एमबीबीएस को छोड़ के अगर आप कोई दूसरी फील्ड में जाना चाहते हैं, अगर आप आयुर्वेदिक डॉक्टर बनना चाहते हैं, होम्योपैथी डॉक्टर बनना चाहते हैं, यूनानी डॉक्टर बनना चाहते हैं, या वेटरनरी डॉक्टर बनना चाहते हैं, जानवर डॉक्टर बनना चाहते हैं, ये सारे में एडमिशन के चांसेस हमेशा रहते हैं। इवन फिजियोथेरेपी हो गया, ऑक्यूपेशन थेरेपी हो गया, बीएसएलपी हो गया, ये सारे कोर्सेज के भी एडमिशन के चांसेस रहते हैं। तो अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास जो कौन कौन से इसमें कोर्सेज है। ये जो मेडिकल फील्ड है ना, इसको मैं 3 पार्ट में डिवाइड करता हूँ। जरा स्लाइड लगाएंगे मेरी प्लीज। हेलो, चले, लगता है स्लाइड का थोड़ा इशू हुआ है तो मैं इसको कैरी फॉरवर्ड करता हूँ मैं। सेकंड स्लाइड। हाँ, देखिए मेडिकल फील्ड जो है ना, मेडिकल फील्ड में जो है वो 3 ब्रांचेस है। पहली जो है उसमें क्लिनिकल है, दूसरी है नॉन क्लिनिकल है और तीसरी पैरामेडिकल है। तो अब जब ये जो आपने स्लाइड देखा है वो क्लिनिकल कोर्सेज की स्लाइड देखा हुआ है। अभी क्लिनिकल कोर्सेज के अंदर जो नंबर 1 एमबीबीएस, सबको पता है कि भाई एलोपैथी डॉक्टर अगर एमबीबीएस करते हैं तो आप एमबीबीएस करने का एलोपैथी डॉक्टर बन सकते हैं। दूसरा बीडीएस आ गया, तीसरा बीएमएस आ गया, बीएचएमएस आ गया, बीओएमएस आ गया, बीबीएससी एंड एएच आ गया। तो ये जितने भी जो 6 कोर्सेज हैं, ये कोर्सेज करके आप डॉक्टर्स बन सकते हैं अलग अलग पैथी के अंदर। और उसके बाद अपनी खुद की क्लिनिक भी डाल सकते हैं, अपनी खुद की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और खुद इसके अंदर ही पोस्ट ग्रेजुएशन के अंदर कोर्सेज भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिर्फ एमबीबीएस किया तो ही आप जिंदगी में सक्सेसफुल रहेंगे। बीडीएस भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। अपना बीएमएस जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। बीएचएमएस है वो भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। बीएमएस यूनानी डॉक्टर है वो भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। और बीबीएससी एएच मतलब जानवरों का जो ऑप्शन, एनिमल जिसको हम डॉक्टर्स कहते हैं, वो भी बड़ा अच्छा ऑप्शन है। तो ये जो पहला जो आया है, जो 6 हमारे पास जो कोर्सेज होते हैं, ये सारों के एडमिशन भी नीट के बेस पे होने वाले हैं। और अगर आपके मार्क्स खुदा ना वास्ता कम आए हैं तो आपको बीडीएस के चांसेस बहुत ज्यादा है, बीएमएस में भी प्राइवेट में मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है, बीएचएमएस में मिलता है। मैं हमेशा देखता हूँ कि बीएचएमएस की तो सीटें हमेशा वेकेंट रह जाती है। हो सकता है बाद में क्वालिफाई क्राइटेरिया जो ओपन के लिए 147 है नीट के मार्क्स और बाद में रिजर्व कैटेगरी के लिए 113 है, वो भी कम हो जाए और आपको ये बाकी के कोर्सेज में एडमिशन मिल जाए। तो एडमिशन प्रोसेस के अंदर कभी भी अपना होप नहीं छोड़ना चाहिए। पहले तो हमने क्लिनिकल कोर्सेज देख लिए, अब सेकंड स्लाइड लेके आते हैं हम। सेकंड स्लाइड जब आएगी इसकी, जैसा मैंने कहा था कि इसमें 3 में डिवाइड किया मेडिकल कोर्सेज को मैंने, क्लिनिकल में, एक नॉन क्लिनिकल में और तीसरा पैरामेडिकल में। अब जो नॉन क्लिनिकल जो कोर्सेज आ गए नंबर उसमें रखे बीपीटीएच, बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी, ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्स है आज की तारीख के अंदर। पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट है। ये कोर्स में भी आप जा सकते हैं। दूसरा है बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशन थेरेपी, बीओटीएच, ये भी बड़ा अच्छा कोर्स है।
BPO बैचलर्स प्रोस्थेटिक ऑन ऑर्थोडिक्स, ये भी बड़ा अच्छा कोर्स है। BSc नर्सिंग और B फार्मेसी, फार्मेसी कर सकते हैं आप। फार्मेसी में 3 कोर्सेज आते हैं, एक डिप्लोमा इन फार्मेसी आता है, एक बैचलर फार्मेसी आता है, एक डॉक्टरेट फार्मेसी आता है। तो ये सारे कोर्सेज के अंदर आप जा सकते हैं। ये सारे कोर्सेज का एडमिशन भी मोस्टली महाराष्ट्र के अंदर जो होएगा, फार्मेसी को छोड़ के BSc नर्सिंग, BPO, BSLP, BOTH और BPTH का जो है ना, वो नीट के बेस पे ही होएगा, नीट के मार्क्स की बुनियाद पर ही होएगा, और डीम यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्ट एडमिशन होएगा, उनके टेस्ट के हिसाब से होगा। अब तीसरा आ जाते हैं हम जो पैरामेडिकल कोर्सेस आते हैं। थर्ड स्लाइड प्लीज। देखिए, जिस तरह कोई अच्छा हॉस्पिटल चलाने के लिए अच्छे डॉक्टर्स की जरूरत होती है, उसी तरह कोई भी हॉस्पिटल विदाउट पैरामेडिकल ट्रेन स्टाफ के बगैर नहीं चल सकता है। आप याद रखो, ये जो स्टाफ होते हैं यही हॉस्पिटल को मैनेज करते हैं। अगर आपका पैरामेडिकल स्टाफ अच्छा रहेगा तो ही आपका अच्छा हॉस्पिटल चल सकता है। तो पैरामेडिकल कोर्सेज जो होते हैं ना, इसके लिए आपको नीट की देने की जरूरत नहीं है। इसका एडमिशन जो होता है वो 12 के बेस पे हो जाएगा, और इसके अंदर भी 3 कोर्सेज हैं। एक तो होता है बैचलर इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, जिसको हम BPMT बोलते हैं। दूसरा आता है डिप्लोमा इन पैरामेडिकल टेक्नोलॉजी, और तीसरा आता है सर्टिफिकेट कोर्सेज। इसमें बहुत सारे कोर्सेज होते हैं। इसमें लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी होता है, उसके बाद अपना रेडियोलॉजी होता है, एक्सरे टेक्नोलॉजी होता है, ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी होता है, ECG होता है, कार्डियक होता है, न्यूरो होता है। ये सारे पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं, जिसमें नियर अबाउट 20 सब ब्रांचेस है इसकी। और ये कोर्सेज कैसा है ना कि आप बहुत जल्दी इसको करके बहुत जल्दी अपनी फैमिली के अर्निंग में आ सकते हो। ये कोर्सेज में उनको रिकमेंड करना चाहता हूँ कि जो आगे अपने स्टडी कैरी फॉरवर्ड नहीं करना चाहते, जिनकी फैमिली का पोजीशन इतनी अच्छी नहीं है और वो अपनी फैमिली का बहुत जल्दी सहारा बनना चाहते हैं, तो ये कोर्सेज में आप एडमिशन ले सकते हैं। तमाम जितनी भी मेजर गवर्नमेंट कॉलेजेस है, जैसे नायर हो गया, JJ हो गया, साइन हो गया, जो महाराष्ट्र के अंदर है, एम्स हो गया, जिपमार हो गया, आर्म फोर्स हो गया, उसमें पैरामेडिकल कोर्सेज के अलग से एडमिशन होते हैं। और उसमें एडमिशन लेने के बाद आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब भी मिल सकता है आपको, और कोई भी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये भी कोर्सेज जो होते हैं, इसका भी बड़ा अच्छा मतलब रिजल्ट है। इसको अभी आप करने के बाद आप सेल्फ इंडिपेंडेंट बन सकते हैं। और बहुत ज्यादा डिमांडिंग कोर्सेज है ये तीनों भी। नेक्स्ट स्लाइड। अब तो हमने एक कोर्सेज देख लिया हमने कि भाई हमारे पास कौन कौन से मेडिकल फील्ड में कोर्सेज आते हैं। हमने इसको डिवाइड भी कर दिया कि इसके अंदर 3 मेन ब्रांच है, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, पैरामेडिकल। अब नंबर 1 आता है MBBS और BDS का, जिसके लिए आप लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि जितने भी नीट एस्पिरेंट जो भी इस साल रजिस्टर किए थे, जितने अपेयर हुए 13 लाख, वो सारे जो अपेयर हुए थे वो MBBS के लिए अपेयर हुए थे। मुझको पता है सबकी एक ही पसंद रहती है, MBBS। फिर बाद में मार्क्स नहीं आता है तो आप फिर अपने हिसाब से फिर अपना प्लान चेंज करते हैं। तो सारे लोगों का जो है यहाँ प्लान है MBBS के लिए जाना, BDS के लिए जाना, BMS के लिए जाना। हमने इसको भी कर दिया कि इसके अंदर 3 मेन ब्रांच है, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, पैरामेडिकल। अब नंबर 1 आता है MBBS और BDS का, जिसके लिए आप लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि जितने भी नीट एस्पिरेंट जो भी इस साल रजिस्टर किए थे, जितने अपेयर हुए 13 लाख। मेरी आवाज मुझको आ रही है। सारे जो अपेयर हुए थे वो MBBS के लिए अपेयर हुए थे। रिकॉर्डिंग आवाज सबकी एक ही पसंद रहती है, MBBS। फिर बाद में मार्क्स नहीं आता है तो आप फिर अपने हिसाब से फिर अपना प्लान चेंज करते हैं। तो चार लोगों का जो है, देखिए ये जो स्लाइड आपके सामने दिख रही है, BDS मेरी आवाज मुझको आ रही है ना। हमने इसको भी कर दिया कि इसके अंदर 3 मेन ब्रांच है, क्लिनिकल, नॉन क्लिनिकल, पैरामेडिकल। अब नंबर 1 आता है MBBS और BDS का, जिसके लिए आप लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि जो भी इस साल रजिस्टर किए थे, जितने अपेयर हुए 13 लाख। सारे जो अपेयर हुए थे वो MBBS के लिए अपेयर हुए। अब नंबर 1 आता है MBBS और BDS का, जिसके लिए आप लोग भी आए हुए हैं, क्योंकि स्लाइड नंबर 5 लगाई ना, जो भी इस साल रजिस्टर किए थे। स्लाइड नंबर 5, हेलो, स्लाइड नंबर 5। हाँ, देखिए अभी हम देखते हैं। देखिए एडमिशन प्रोसेस पे आते हैं। अभी एडमिशन प्रोसेस कैसा होता है वो देख लेते हैं हम। एडमिशन प्रोसेस जो होता है MBBS का और BDS का होता है ना, वो 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एक तो होता है ऑल इंडिया से, दूसरा होता है अपनी जो स्टेट से, आप जो अपनी स्टेट में आप जो एडमिशन लेते हो उसमें, और तीसरा होता है अदर स्टेट में जाके एडमिशन लेना। ये जो आप देख रहे हैं ये ऑल इंडिया से देख रहे हैं आप। ऑल इंडिया जो कोटा होता है वहां से एडमिशन होता है। अभी उसमें ऑल इंडिया कोटे के अंदर कौन कौन सी कॉलेज आती है वो देख लेते हैं। सबसे पहला तो जितनी भी पूरे इंडिया में जो गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी 15% जो गवर्नमेंट कॉलेजेस है वो सारी की सारी ऑल इंडिया कोटे में आती है।
ये साल से एक अच्छी बात क्या हुई है कि एम्स की जितनी भी पहला लास्ट ईयर तक 15 एम्स थी, अभी 18 हो गई है। ये सारी एम्स की कॉलेजेस भी है ना जो ऑल इंडिया में रहेगी। जिपमार ऑल इंडिया के अंदर है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑल इंडिया के अंदर है, आर्म फोर्स का भी ऑल इंडिया से रहेगा ये। और जितनी भी डीम यूनिवर्सिटी होती है इंडिया में, अभी 47 डीम यूनिवर्सिटी है, वो सारी ऑल इंडिया काउंसलिंग से ही उसकी पार्टिसिपेट होएगा। ये एमबीबीएस और बीडीएस की बात कर रहा हूँ, जिसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आज से चालू होने वाला था, एक दिन के लिए डिले हो गया। आप उसको कल जाके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं उसका, और उस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये है एमबीबीएस और बीडीएस की, जिसकी वेबसाइट का नाम है mcc.nic.in। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, अभी ये जो मैं बात कर रहा था एमबीबीएस और बीडीएस की, मैं अभी बात कर रहा हूँ आयुष कोर्सेज की। देखिए आयुष कोर्सेज किसको कहते हैं, पहले ये समझ लेते हैं। आयुष कोर्सेज जो होते हैं उसमें आता है BAMS, मतलब बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक एंड मेडिसिन सर्जरी, फिर उसके बाद BAMS हो गया, फिर BHMS मतलब होम्योपैथी डॉक्टर हो गया, यूनानी डॉक्टर हो गया, सिद्धा हो गया। ये सारे जो हो गए ये आयुष कोर्सेज के अंदर आते हैं। इसका भी एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो 3 टाइप का होता है। एक तो ऑल इंडिया कोटे से होता है, सेकंड जो होता है स्टेट से होता है अपनी, और थर्ड होता है अदर स्टेट में जाके आप पार्टिसिपेट। तो ये मैं जो बता रहा हूँ आपको ऑल इंडिया की वेबसाइट बता रहा हूँ, जिसका एडमिशन प्रोसेस अभी ये साल चालू नहीं हुआ है। इसकी वेबसाइट का नाम है AA.CC.org.in। इसे आपको ख्याल रखना है, आपको यहाँ भी पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ देखिए एडमिशन के जितने भी आपके पास चांसेस रहते हैं, अगर आपके पास लो है तो आपको अपने रिसोर्सेस को हर जगह तलाश करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एडमिशन प्रोसेस समझना रहता है और उसी हिसाब से आपको एडमिशन लेना रहता है। तो यहाँ पे भी आप जरूर रजिस्ट्रेशन किया था करना, क्योंकि लास्ट ईयर सिर्फ ओपनिंग हुआ था, इससे पहले कभी नहीं होता था। लास्ट ईयर हुआ था और बहुत कम मार्क्स में भी लोगों को आयुष कोर्सेज के अंदर एडमिशन हो गया था। तो आप यहाँ पे भी जरूर पार्टिसिपेट कीजिएगा ऑल इंडिया काउंसलिंग में आयुष कोर्सेज के अंदर। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये जो आ रहा है ये मैं इसे बता रहा था ना कि 3 टाइप के एडमिशन होते हैं। ये अभी हमने स्टेट कोटा का लेके आ गया। अभी ये हम महाराष्ट्र स्टेट की बात करें। महाराष्ट्र स्टेट का जो स्टेट जो काउंसलिंग होगी ना वो महासैट करता है, और महासैट क्या करता है, एक पोर्टल देता है हमारे को। ये लास्ट टाइम का पोर्टल था नीट का, कि नीट का जो एडमिशन, और महाराष्ट्र का जितना भी यही पोर्टल से आपको एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, बीएमएस, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशन थेरेपी, जितने भी मैं कोर्सेज बताया हूँ पैरामेडिकल को छोड़ के, सबका एडमिशन प्रोसेस एक ही पोर्टल से होएगा। और आपको यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन के पढ़ने के बाद अपनी चॉइस फिलिंग करना रहेगा, और उसी की चॉइसेस पे आपका एडमिशन होगा यहाँ पर। ये इसकी फर्दर डिटेल के लिए मैं एक वीडियो बना के अपने यूट्यूब चैनल पे डाला हूँ, आप जरूर देख लीजिएगा। ये महाराष्ट्र स्टेट के अंदर आपको काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करना जरूरी रहेगा। नेक्स्ट स्टेप। अभी हम देखते हैं कि ये एडमिशन जो अगर आपको लेना है तो उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये मैं स्टेट कोटा की बात कर रहा हूँ महाराष्ट्र की। सबसे पहला तो आप इंडियन होना चाहिए। एनआरआई जो अपने रहते हैं यहाँ पे, अनफॉर्चुनेटली वो सिर्फ एनआरआई कोटे में अप्लाई कर सकते हैं, और डोमिसाइल बहुत जरूरी है। मतलब कि जो महाराष्ट्र में एडमिशन लेना चाहता है वो महाराष्ट्र का ही डोमिसाइल होना चाहिए, मेडिकली फिट होना चाहिए, और एचएससी महाराष्ट्र से करना चाहिए। ये इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2 टाइप का होता है, ये तो हमने पहला देख लिया। अब ये देखिए कि हमने मार्क्स कितने हमारे चाहिए। अगर हमने एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस में सब में एडमिशन अगर आपको लेना है तो आपको 50% नीट में लाना चाहिए था, जिसका मालूम है आपको 147 आया हुआ है। अगर आपने ओपन कैंडिडेट है, और अगर आप ओपन नहीं है तो आपको 40% जिसका 113 मार्क्स लाना था, तो आप नीट के अंदर एलिजिबल, और ये सारे एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस के अंदर एडमिशन ले सकते हैं आप। और एचएससी में जो ग्रुप होता है जिसको हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो बोलते हैं, उसमें 50% लाना जरूरी था आपका। मतलब 300 में से 150 मार्क्स लाना जरूरी था आपका। तो ये अगर आपने नहीं अगर लाया हुआ है तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है ये कोर्सेज में एडमिशन के लिए। हाँ, अगर आप बीयूएमएस पे एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपका 10th के अंदर सब्जेक्ट क्या चाहिए था, उर्दू भी चाहिए था, या उर्दू या तो पर्शियन, ये एक सब्जेक्ट आपका चाहिए था। अगर ये सब्जेक्ट था तो आप बीयूएमएस पे एडमिशन ले सकते, वरना नहीं ले सकते। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी इनिशियल अब डॉक्यूमेंट्स क्या लगेगा आपको कि भाई आपको जब काउंसलिंग यहाँ पे महाराष्ट्र स्टेट के अंदर जब आप पार्टिसिपेट करेंगे, अभी जो ऑल इंडिया का जो चालू होगा, चाहे वो आयुष कोर्सेज का हो या एमबीबीएस और बीडीएस का हो, वहाँ पे आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना रहता है। मगर जब महाराष्ट्र में आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपके पास क्या क्या चाहिए, वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए, ऑनलाइन डाउनलोड एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए नीट का था,
फिर उसके बाद की नीट की कॉपी चाहिए, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड। नेशनलिटी सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, एचएससी एग्जामिनेशन स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स, एसएससी के मार्क्स, ये सारे मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको महाराष्ट्र स्टेट काउंसिलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप ये देख रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपको अगर नहीं है तो बना के रखना जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वही अगर आप रिजर्वेशन कैंडिडेट हैं, आपके पास कोई रिजर्वेशन है, जैसे भी ईडब्ल्यूएस का भी रिजर्वेशन आ गया, आपको मालूम है 10% का रिजर्वेशन आ गया है, तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट चाहिए उसके लिए, और बाकी कास्ट सर्टिफिकेट, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट चाहिएगा। ईडब्ल्यूएस को नॉन क्रीमी सर्टिफिकेट नहीं लगता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी यहाँ पे देखिए और भी एक स्पेशल रिजर्वेशन भी रहता है महाराष्ट्र के अंदर, डिफेंस कैटेगरी का रहता है, पर्सन विद डिसेबिलिटी जिसको हम पीडब्ल्यूडी कोटा बोलते हैं वो रहता है, एमकेबी बॉर्डर्स रहते हैं जो महाराष्ट्र कर्नाटक बॉर्डर में रहते हैं उनका रहता है, हिली एरिया का रिजर्वेशन रहता है। इसके अगर इसको क्लेम करना है तो इसके लिए अलग से डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एडमिशन जो प्रोसेस होता है, जैसे मैं बताया था मैंने आपको कि जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है उसकी 15% जो सीट होती है वो ऑल इंडिया कोटे में जाती है, 85% जो सीट रहती है वो स्टेट कोटे के अंदर आती है। ऑल इंडिया कोटे के अंदर अगर आप रिजर्वेशन देखेंगे तो 15% जो रहता है एससी का रहता है, 75% जो रहता है एसटी का रहता है। कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज जो होती है अगर वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो उसको चलाती है, जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, एएमयू हो गया, बीएचयू हो गया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट में अंडर में है उसके अंदर तो ओबीसी कोटा रहेगा ऑल इंडिया में। बाकी अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज जो स्टेट गवर्नमेंट चलाती है या कॉर्पोरेशन चलाती है उसमें वहां पे ओबीसी कोटा नहीं रहेगा, ये बात का आप ख्याल रखिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी मैं बता रहा था कि यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर बहुत से जो लोग हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उनको अगर वहाँ पे डोमिसाइल नहीं भी है महाराष्ट्र का तो भी उनको एग्जेम्पशन मिलता है। जैसे चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट के, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉय ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, चिल्ड्रन ऑफ एम्प्लॉयज ऑफ अंडरटेकिंग उनको देना पड़ता है कि हम महाराष्ट्र गवर्नमेंट के हैं, जो यहाँ से वहाँ शिफ्टिंग होते रहती है, तो उनको लिए जरूरी नहीं है कि वहाँ पे वो डोमिसाइल रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट कौन कौन से वो भी हम देख लेते हैं। मेडिकल के लिए, एमबीबीएस के लिए एक ही माइनॉरिटी कॉलेज है पूरे महाराष्ट्र के अंदर जिसका नाम है जीआईयू, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च जालना, जिसके अंदर जितनी भी 100% जो सीटें होती है उसमें से 15% एनआरआई के लिए, बाकी 85% मुस्लिम कैंडिडेट के लिए रिजर्व है। डेंटल के अंदर एमए रंगून वाला एक कॉलेज है, उसकी टोटल जितनी भी सीटें हैं वो मुस्लिम माइनॉरिटी के लिए है। हाँ, और ये माइनॉरिटी के लिए एक सर्टिफिकेट आता है, आपको एफिडेविट बनाना रहता है और अपलोड करना रहेगा वो। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये रिजर्वेशन देख लेते हैं कि महाराष्ट्र में कौन कौन से रिजर्वेशन होते हैं। महाराष्ट्र में देखिए टोटल अभी फिलहाल जो रिजर्वेशन है एससीबीसी को हट गया है तो यहाँ पर 50% का रिजर्वेशन है और 10% ईडब्ल्यूएस का अलग आ गया, तो 60% जो है वहाँ पे रिजर्वेशन है और 40% जो है जो ओपन कैटेगरी की सीट है यहाँ पे। ऐसी भी रिजर्वेशन जो मैं डाला था वो हट चुका है, वो सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया हुआ है, तो एससीबीसी को आप निकाल देंगे तो यहाँ पे 60% का रिजर्वेशन है। आगे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे महाराष्ट्र के अंदर हर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर अप टू 5 सीट जो रहती है वो डिफेंस में जो काम करते हैं उनके लिए रहती है, जो डिफेंस के अंदर रहते हैं उनके लिए रहती है। तो उसके लिए डिफेंस 1, डिफेंस 2, डिफेंस 3, ये डिफेंस 1 में जो डोमिसाइल यहाँ पर है, डिफेंस 2 जो डोमिसाइल नहीं है मगर 10 ईयर यहाँ से लिया हुआ है, डिफेंस 3 ये डोमिसाइल जिसका नहीं है, ये ऐसा करके D1, D2, D3 ये यहाँ पे जो है उनके लिए रिजर्वेशन रहता है यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर। डिफेंस का 5 सीट रहती है, उनके लिए है ये। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, अभी टोटल कोटा बताया था मैंने कि 5% अप टू 5% मैक्सिमम 5 सीट जो रहती है वो डिफेंस वालों को रहती है। इसमें मेडिकल में भी है, डेंटल में भी है, आयुर्वेद में भी है और यूनानी में भी है। ये जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज है सारों के अंदर जो है ना डिफेंस वालों का कोटा रहता है। अगर कोई डिफेंस के स्टूडेंट है यहाँ पे तो उनको चाहिए कि ये रिजर्वेशन का ज्यादा फायदा ले। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। जैसे मैंने कहा था कि पीडब्ल्यूडी मतलब पर्सन विद डिसेबिलिटी रहता है, जिसको हम पीडब्ल्यूडी बोलते हैं, जिसको हैंडीकैप कैटेगरी भी बोलते हैं। अगर आप उस कैटेगरी में आते हैं तो 5% जो सीट है आपकी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर उनके रिजर्वेशन है। देखिए जितने भी रिजर्वेशन रहते हैं उसका बहुत ज्यादा बेनिफिट रहता है। अगर कोई फिजिकली हैंडीकैप कैंडिडेट है उनको चाहिए कि अपना फिजिकल हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनाए
और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे रजिस्ट्रेशन के टाइम पे अपलोड कर दे। ये इसके क्राइटेरिया दिया हुआ है कि कौन कौन सी डिसेबिलिटी रहती है, फिजिकल डिसेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, मेंटल बिहेवियर डिसेबिलिटी, डिसेबिलिटी कॉज बाय द क्रोनिक इलनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटी। ये इसकी मैंने क्राइटेरिया बनाऊं ABCDE। ये अगर क्राइटेरिया में आप आते हैं 40 से लेकर 80% तक आपका डिसेबिलिटी है, आप मेडिकली फिट है, मेडिकल में एडमिशन के लिए लिए और इसका बेनिफिट जरूर लीजिए आप। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए यहाँ पे एक और कोटा होता है जिसके अंदर मतलब बताया जाए रिजर्वेशन महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर में जो रहते हैं उनके लिए भी रहता है। ये उनके लिए दिया हुआ है कि लिए उनके लिए क्या क्या चीज जरूरी है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी वही है कि उनको जो अगर फिजिकल हैंडीकैप कैंडिडेट है तो उसको सर्टिफिकेट कहाँ से बनाना है, उनको हाजी अली से बनाना है या तो ग्रैंड मेडिकल कॉलेज है जो बॉम्बे के अंदर वहां से बनाना है, या तो फिर वो दिल्ली से बनाना है उसको, या तो फिर कोलकाता से बनाना है। यहाँ से ही अगर वो सर्टिफिकेट बनाएगा तो ही वो एलिजिबल है, वरना एलिजिबल नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हिली एरिया का रिजर्वेशन, जैसा बताया था मैंने कि हिली एरिया जो रहता है, महाराष्ट्र के अंदर बहुत सारे हिली एरिया हैं। अभी तक ये हिली एरिया का रिजर्वेशन चला है, जबकि सब भी क्लासेस ऑनलाइन हो गई है, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई है, हम पूरा डेवलप हो चुके हैं, हमने अभी तक हिली एरिया का रिजर्वेशन छोड़ा नहीं है। तो हर गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर 3% जो सीटें होती हैं वो हिली एरिया के रहती है, और ये रिजर्वेशन हॉरिजेंटल चलता है, मतलब हर कैटेगरी के अंदर चाहे वो ओपन हो, SC हो, ST हो, हिली एरिया की 3% सीटें रिजर्व रहती है। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया हुआ है कि पेरेंट्स वहां से बॉर्न होना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। टोटल MBBS कॉलेजेस कितनी है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र चलाती है 19 कॉलेजेस, उसकी सीट दिया हुआ है यहाँ पे। कॉर्पोरेशन मतलब अभी मुंबई कॉर्पोरेशन के हाथ में, जैसे KM मुंबई कॉर्पोरेशन की कॉलेज है, नायर मुंबई कॉर्पोरेशन की कॉलेज है, कूपर मुंबई कॉर्पोरेशन की कॉलेज है, और उसके बाद ऐसा जो कॉर्पोरेशन की है, जैसे थाना कॉर्पोरेशन की कलवा जो है राजीव गांधी कॉलेज है, वो उनकी कॉर्पोरेशन की कॉलेज 5 है। प्राइवेट 18 कॉलेज है, डीम यहाँ पे 12 कॉलेजेस है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की 2 कॉलेजेस है, एक तो आर्म फोर्स है और दूसरी जो है वहाँ पे सेवाग्राम वर्धा की, और एक गवर्नमेंट एडेड कॉलेज है यहाँ पे। 57 ऐसे टोटल कॉलेजेस हैं यहाँ पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सीट डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है वो कैसा होता है वो देख लेते हैं हम। 15% जो सीटें होती है ऑल इंडिया कोटे में जाती है, 85% महाराष्ट्र कोटे में आती है, 30% जो रहता है वो रीजनल कोटा रहता है, जिसके बारे में केस चालू, आपको पता है इसके बारे में। इसका केस का डिसीजन 10 नवंबर का आएगा, इसलिए महाराष्ट्र का जो एडमिशन प्रोसेस है 10 नवंबर तक पोस्टपोन हो चुका हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक बार ये सीट को डिस्ट्रीब्यूशन जो मैंने बताया था उसी का एक चार्ट है कि सीट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, वो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए जो मेरिट बनती है आपकी, वो मेरिट के हिसाब से 85% गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन की जो सीट रहती है स्टेट की, वो वही मेरिट पे आपको यहाँ पे सीट मिलती है। 50% जो सीटें रहती है सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी कॉलेज है उसकी यहाँ पे अपने को मिलती है, और 100% प्राइवेट कॉलेजेस की सीट हमारे को यहाँ महाराष्ट्र स्टेट से मिलेगी। ये सारा जो होएगा नीट स्टेट मेरिट की जो आती है SML नंबर जिसको हम कहते हैं, उसके ऊपर एडमिशन होएगा। और बाकी जो 15% जो ऑल इंडिया कोटे का जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया रैंक के ऊपर होता है। मतलब महाराष्ट्र स्टेट का जो एडमिशन जो प्रोसेस होएगा वो SML नंबर जो आएगा महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका, उस पर होएगा, वो ऑल इंडिया रैंक पे नहीं होएगा। और जो ऑल इंडिया में एडमिशन प्रोसेस जो होता है वो ऑल इंडिया रैंक के ऊपर होता है, ये ख्याल रखिएगा। तो अभी आपका जो ऑल इंडिया रैंक आया वो स्टेट के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है एडमिशन के लिए, स्टेट के लिए आपको SML नंबर इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। देखिए ये आपको जब आप चॉइस फिलिंग करेंगे यहाँ पे तो कोड नंबर डालना पड़ता है, और ये कोड नंबर आप याद रखो, जब भी कोई कोड 1 से चालू होगा तो समझो मेडिकल का है, 2 से चालू होएगा तो वो कोड BDS का है, 3 से चालू होएगा तो वो BMS का है, 4 से चालू होएगा तो BHMS का है, 5 से चालू होएगा तो वो BUMS का है। इसी तरह मैंने आपको यहाँ पे कोड के डिटेल बताया हूँ, ये बहुत जरूरी है चॉइस फिलिंग के अंदर, याद रखना। इसमें आप बहुत मिस्टेक करते हैं, तो ये बहुत ध्यान से रखिएगा। जब भी कोई आपको MBBS के लिए डालना है तो समझो 1 से जो कोड स्टार्ट हो रहा है वो MBBS का, 2 से स्टार्ट हो रहा है तो BDS का। इसके बारे में एक डिटेल दिया हूं मैंने। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज।
हाँ, अभी कॉलेज कोड के बारे में हम देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा था कि जो अभी ये जेजे हॉस्पिटल मुंबई का कॉलेज कोड है 1 से चालू हो रहा है और 101 जो है जेजे का कोड है। ये आपको ऐसा चॉइस फिलिंग में यहाँ पे जब प्रेफरेंस डालेंगे ऐसा कोड नंबर डालना रहेगा, आप याद रखिए 1101 ये और ये 4 मतलब के BHMS मतलब चंदा मैन जो हमारी कॉलेज है होम्योपैथी की उसका है, 9 बोले तो नर्सिंग का, 1 वापिस से जो आ गया 119 ये GMC दूल्हे का है। जहां स्टार्ट हुआ 1 से समझ लीजिएगा वो जो कोड नंबर है वो मेडिकल का है, 3 से स्टार्ट हुआ तो समझ लीजिए वो BAMS का है, 2 से स्टार्ट हुआ तो समझ लीजिएगा वो BDS का है। ये आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, चॉइस फिलिंग के टाइम पे कोड नंबर का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, बहुत से कैंडिडेट से मिस्टेक करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म का एक सैंपल दिया मैंने, इसका एक वीडियो बना के जरूर डाल दूंगा जब महाराष्ट्र का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस चालू होगा, इसमें इतना क्लियर नहीं आया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हाँ, ये वही रजिस्ट्रेशन का सेकंड पेज का जो है, आपको जब रजिस्ट्रेशन महाराष्ट्र में करेंगे आप तो आपको रजिस्ट्रेशन करने के साथ में डॉक्यूमेंट अपलोड करना रहेगा, ये उसका एक सैंपल दिया हुआ है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये आपने पूरा एक समझ में आ गया कि स्लाइड के थ्रू के किस तरह महाराष्ट्र का और ऑल इंडिया का एडमिशन प्रोसेस चलता है, ये आपका समझ में आ गया है कि आपको अगर आपको महाराष्ट्र में पार्टिसिपेट करना है तो इसमें आपने देख लिया कि आपको कोड फिलअप करना है, कैसा चॉइस फिलिंग करना है वो हमने देख लिया, ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करना है तो वहाँ पे कौन कौन सी कॉलेजेस है वो भी देख लिया हमने। आपने ये भी मालूम कर लिया कि सिर्फ MBBS ही नहीं है, बहुत सारे अदर्स कोर्सेज भी हैं यहाँ पे। अभी हम आते हैं अपने सेशन के ऊपर, और वो है जो क्वेश्चन आंसर का जो है, जो मेन आप लोग आए हैं वो इसी के लिए आए हैं। मुझको मालूम है कि आप लोगों के माइंड में बहुत सारे डाउट चल रहे हैं, तो आप अपने क्वेश्चन को पूछ सकते हैं मुझसे अभी। Thank you so much, Muzaffar Saab. There are few questions raised by the participants. I will start asking one by one, inshallah. Oh, inshallah. So, first question is from Saud Khan. He says that secured 250 marks, 259 AIR 3,96,330. Will I get YMT, HMC, Kharghar, Navi Mumbai, BHMS? देखिए, हाँ, मैं अभी आपको एक बात का जवाब, इनका सब सारे जितने भी यहाँ पे भी हमारे यहाँ पे पार्टिसिपेंट यहाँ पे मेरी बातों को सुन रहे हैं, उनको ये बताना चाहूंगा मैं, आपको कौन सी कॉलेज मिल रही है और आपके रैंक पे आपको क्या मिल रहा है ये जानना बहुत ही आसान है, मगर आप फिर भी पैनिक रहते हैं। कैसा जानना आसान है बताऊं मैं आपको। आपका ऑल इंडिया रैंक आ गया है, मैंने पहले कहा था कि यहाँ पर एडमिशन ऑल इंडिया में जो एडमिशन होता है वो ऑल इंडिया रैंक के ऊपर होता है और महाराष्ट्र में होता है SML नंबर पे होता है। टेंटिवली आपको आइडिया भी आ जाएगा अगर आप लास्ट ईयर का देखेंगे कि ये सेम रैंक के ऊपर ऑल इंडिया ये जो रैंक था इस पे महाराष्ट्र का SML नंबर क्या है, उसकी लिस्ट भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया हूँ कि भाई ये रैंक जो आया था इसके ऊपर क्या SML आया था। उसके बाद मैंने लास्ट ईयर की सारी MBBS की, BDS की, BMS की, BHMS की सारी लिस्ट मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दिया हूँ। अगर ये मार्क्स पे 3 लाख थी, अगर 3 लाख मार्क्स पे आपको चंदा मैन देखना है तो आप देख सकते हैं कि लास्ट ईयर ये स्कोर पे मिला था, ये रैंक पे मिला था कि नहीं मिला था। अगर आपको समझो, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको ये रैंक पे स्टेट काउंसिलिंग में नहीं मिला था और आप सिर्फ मार्जिनली 5% से अगर पीछे रह गए थे तो ये साल जरूर मिलेगा क्योंकि सीटें इंक्रीज हुई है, बराबर। और अगर लास्ट ईयर पे ये रैंक पे चंदा मैन मिला था होम्योपैथी का कॉलेज तो 100% डेफिनेटली ये रैंक ये साल भी मिलेगा। और आपको अगर ये साल लेना है तो आप क्या कीजिएगा, ऑल इंडिया में भी पार्टिसिपेट कीजिएगा, स्टेट में भी पार्टिसिपेट कीजिएगा, मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस है। क्योंकि पहले कैसा था कि SABC कोटा भी था, अभी SABC कोटा निकल गया हुआ है, तो यहाँ पर MBBS की सीटें भी बढ़ी है, ऑल इंडिया में भी सीटें बढ़ी है, सबका इम्पैक्ट रहने वाला है। आप उसको एक एनालाइज कर दीजिए। मैंने सारे कट ऑफ बना के अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया हूँ मैंने कि चंदा बेन का क्लोजिंग ये था, इवन JJ का ये, नायर का ये, सारे कोर्सेज का मैंने सारा कट ऑफ बना के डाल दिया हूँ। वो कट ऑफ को आप देख सकते हैं। अगर लास्ट ईयर आपके रैंक पे मिला था कोई कैंडिडेट को तो 100% आपको ये रैंक पे मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू। सेकंड क्वेश्चन फ्रॉम दानियाल माटवनकर। सर, गैप सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है क्या? देखिए, मैं हमेशा ये बात कहता आया हूँ कि गैप सर्टिफिकेट इज नॉट अ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट। गैप सर्टिफिकेट विल बी रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ एडमिशन, नॉट एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। मतलब गैप सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए जरूरी नहीं है आपको बिल्कुल भी। एक मतलब गैप सर्टिफिकेट क्या होता है कि आप जब एडमिशन आपका हो गया, आपको सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ गया आपका,
तो आपको जो कॉलेज में एडमिशन लेने जाना है वहां जाके सबमिट करना है कि हाँ मेरा ये एजुकेशन गैप हुआ था, और वो बहुत आसानी से बनता है। सिर्फ 100 रुपीज का स्टाम्प पेपर खरीदना है, और उसमें मैंने जो आप कहीं गूगल भी करेंगे, मैंने अपनी वेबसाइट पे उसका सैंपल डाला हूँ गूगल कर, मैंने कि भाई ये मेरा गैप पीरियड है, इस गैप पीरियड के अंदर मैं स्टडी कर रहा था, मैं कोई दूसरी कॉलेज में अपना एडमिशन नहीं लिया था, ये लिख के आपको नोटरी करके सबमिट कर देना है। तो ये आपको एडमिशन रजिस्ट्रेशन के टाइम भी लगने वाला नहीं है, और ये जब एडमिशन हो जाएगा जब भी आपको लगेगा, जब भी आप उसको आराम से बना सकते हैं। Thank you. Another question from Arshad Khan. Sir, I have scored 575 in NEET and I am from EWS quota. What are my chances in Maharashtra counseling? देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप मार्क्स को कंपेयर करेंगे तो एडमिशन मार्क्स के बेस पे नहीं होता, ऑल इंडिया रैंक पे होता है। लास्ट ईयर यही मार्क्स के ऊपर रैंक था, 574 के ऊपर ऑल इंडिया रैंक था, कुछ नियर अबाउट 15-16,000 रैंक था। यही टाइम पे ये 574 पे डबल रैंक हो गया है। तो आपका अगर आपने रैंक बताया होता तो मुझको ज्यादा आइडिया आया था, मतलब मार्क्स से भी मुझको रैंक का अंदाजा आ जा रहा है पूरा। आपको डेफिनेटली यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है महाराष्ट्र में, आप खुश हो जाओ। अब ये मत पूछिएगा कि कौन सी कॉलेज मिलेगी, 24 गवर्नमेंट कॉलेज है, अच्छी कॉलेज मिलने के चांसेस है, आपका ईडब्ल्यूएस भी है, डबल बेनिफिट है, आप खुश हो, आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल रही है। Thank you. Another question from Dhananjay. Which course is better and what would you recommend? BDS GOV or BAMS GOV? देखिए, मैं तो बीएमएस के साथ में जाऊंगा, अगर आप कोई रूरल में है, मेट्रो सिटी में नहीं है तो। अभी देखिए, अगर आप देखेंगे आयुर्वेदिक जो है बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, और उसमें भी नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नई नई चीज़ें आ गई है। तो मैं तो प्रेफर करूंगा, अगर अगर आपको बीएमएस पे अच्छा मिल रहा है, अच्छी कॉलेज में मिल रहा है, तो गो फॉर इट, अच्छा कोर्स है, बाद में पीजी भी कर सकते हैं उसके अंदर। और अगर कॉलेज देखिए, अगर दोनों में बेटर कॉलेज कौन सा मिल रहा है, अगर बीडीएस की गवर्नमेंट कॉलेज मिली तो उसको प्रीफर कीजिए, वरना आप प्राइवेट कॉलेज बीडीएस से अच्छा है कि बीएमएस कर लीजिए, बीएएमएस कर लो आप। Okay, thank you. There's one question from an anonymous person. Can a person enter into MBBS directly into round 2 by skipping round 1? ऑफ कोर्स, मगर वो सिर्फ ऑल इंडिया के अंदर कर सकता है। महाराष्ट्र में जिसने पहली मरतबा जब एक ही बार विंडो ओपन होगी, अगर रजिस्ट्रेशन उसने नहीं किया महाराष्ट्र में, तो वो कभी नहीं कर सकता बाद में। मगर अगर वो ऑल इंडिया की बात कर रहे हैं तो सेकंड राउंड में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ऑल इंडिया में। अभी विंडो ओपन हो रहा है, अभी भी कर सकता है। सेकंड राउंड में भी विंडो ओपन होएगा, न्यू रजिस्ट्रेशन का जब भी कर सकता है। मॉपअप राउंड में भी विंडो ओपन होएगा, जब भी कर सकता है। मगर महाराष्ट्र में जब भी जैसा विंडो ओपन होएगा उसको रजिस्ट्रेशन करना ही है, वरना वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। Thank you. Is it necessary to make NCL certificate from annexure, specimen and information brochure? ऑफ कोर्स, वो अगर इंफॉर्मेशन बुकलेट में जो एनेक्चर दिया हुआ है तो उसी हिसाब से आपको नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट बनाना है। अगर आपने अपना कोई फॉर्मेट लगाया, उन्होंने ब्रोचर में डाला ही क्यों, वो चीज को मेंशन क्यों किया हुआ, एनेक्चर डाला इसीलिए जाता है कि आपको बताने के लिए कि भाई ये जो मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट है, या जो ये एनसीएल का सर्टिफिकेट है, या तो ये ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है, ये एनेक्चर हम अटैच कर रहे हैं, ये इसी का हमारे को सेम सही है। तो अगर एनेक्चर दिया है तो एनेक्चर का आपको सेम बना के देना है। थोड़ा बहुत अगर होएगा तो अलग बात है, मगर मोस्टली गवर्नमेंट जो ब्रोशर बनाती है इन्फॉर्मेशन, वो तहसीलदार से कंफर्म करके बनाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। Thank you. What will be the tentative cutoff of Muslim Minority College Jalna? देखिए, टेंटेटिवली कट ऑफ मैंने पूरे बना के डाल दिया हूँ। जालना प्राइवेट कॉलेज है, अब कितने मुस्लिम स्टूडेंट के मार्क्स अच्छे आए हैं इसका अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। ये महाराष्ट्र में इतने सारे मुस्लिम बच्चों ने एग्जाम दिया है, महाराष्ट्र से नियर अबाउट 2 लाख स्टूडेंट पार्टिसिपेट किए थे, 80,000 एलिजिबल हुए। 80,000 में हाउ मेनी आर मुस्लिम कैंडिडेट, और मुस्लिम कैंडिडेट में कितने के कितने अच्छे मार्क्स है, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं है। फिर भी मैं एक सेफर साइड के लिए बता रहा हूँ कि जिसका भी ऑल इंडिया रैंक 80,000 के बिलो आ रहा है, वो अपने आप को एक सेफर साइड पकड़ सकता है कि वो जालना में मिल सकता है उसको। Thank you. Another question is, can you please elaborate on corporation colleges? What are the corporation colleges? देखिए, कॉर्पोरेशन कॉलेज में बताया ना आपको, पहले ये समझ लीजिए कि जो गवर्नमेंट कॉलेज होती है उसको 3 बॉडी रन करती है। मैं पहला एक्सप्लेन कर दूं। पहला रहती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको रन करती है, तो उसको हम बोलते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी।
अब सेंट्रल गवर्नमेंट जैसे एम्स हो गया, जिपमर हो गया, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो गई, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी हो गई, मौलाना आजाद कॉलेज हो गया, ये सारी गवर्नमेंट, ये जितने भी गवर्नमेंट कॉलेजेस है इसको सेंट्रल गवर्नमेंट अपना मैनेज करती है, रन करती। तो इसको हमने क्या कर दिया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी। अभी यहाँ पे जितने भी जीएमसी अगर लग के आ गया, कोई भी कॉलेज का अगर जीएमसी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज महाराष्ट्र में लग के आ गया, तो उसको कौन रन करता है, स्टेट गवर्नमेंट रन करता है, मतलब उसको मैनेज कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट। और यहाँ पर ये अगर ये दो नहीं लग के आ रहा है, और अभी से केएम हो गया, नायर हो गया, साइन हो गया, इसको कौन रन करता है, इसको हमारी कॉर्पोरेशन जो रहती है ना, कॉर्पोरेट बॉडी रहती है, उसको रन करती है। ये सब गवर्नमेंट ही कॉलेज है, ये गवर्नमेंट कॉलेज नहीं है ऐसा, ये गवर्नमेंट ही कॉलेज है, मगर इसको अलग अलग जो डिफरेंट बॉडी होती है, तीनों बॉडी गवर्नमेंट की बॉडी है, तो अलग अलग बॉडी रन करती है। तो हम इसको क्या कहते हैं, गवर्नमेंट ही कॉलेज कहते हैं, मगर इसको एक सेंट्रल गवर्नमेंट रन करती है, एक स्टेट गवर्नमेंट रन करती है, और एक कॉर्पोरेशन जो लोकल बॉडी रहती है कॉर्पोरेशन की, वो रन करती है। तो उसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेशन कॉलेजेस। और कॉर्पोरेशन कॉलेजेस जो रहती है उसमें ज्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि उसके अंदर कॉर्पोरेशन क्या करती है, उसको सिर्फ एक ही कॉलेज को अपनी जो कॉर्पोरेट बॉडी में चलाना है, तो उसको अच्छे से मेंटेन करके रखती है वो। Thank you. Question from Nasir Mujawar. Is EWS will valid in private MBBS college? देखिए ईडब्ल्यूएस के ताल्लुक से बहुत ज्यादा गलतफहमी हुई थी, उसके अंदर मैंने एक बड़ा अच्छा आर्टिकल लिखा मेरे वेबसाइट पे, अगर आप जाएंगे तो मेरी वेबसाइट पे आर्टिकल पढ़ सकते हैं, इसमें वीडियो भी बना के डाला, क्योंकि बहुत सारी गलतफहमी थी। देखिए ईडब्ल्यूएस प्राइवेट कॉलेज में अप्लीकेबल दो टाइप की आप बात कर रहे हैं कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट प्राइवेट कॉलेज में सीट ले सकता है कि नहीं, ले सकता है। प्राइवेट में क्या, वो एनआरए में भी ले सकता है, मैनेजमेंट कोटे में ले सकता है, डीप में भी ले सकता है, जहां चाहे वहां पे सीट ले सकता है। पर एप्लीकेबल मतलब कि वहां पे रिजर्वेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन मालूम कोई भी कॉलेज में जब आता है जब वहां पे सीटें इंक्रीज होती है। अगर प्राइवेट कॉलेज में सीटें इंक्रीज होगी तो ही ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन आएगा, वरना नहीं आएगा। अभी आपने देखा है कि ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर भी कोई भी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर ऑल इंडिया के अंदर ईडब्ल्यूएस नहीं आने वाला है। सिर्फ जितने भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, एम्स की बात कर रहा हूँ, जिपमार की बात कर रहा हूँ, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो चलाती है जो यूनिवर्सिटी को, चाहे वो एएमयू, बीएचयू में, जिसके बारे में बताया था आपको मैंने, ये सारी जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसमें उन्होंने सीटें इंक्रीज करी है, और वहां पे ईडब्ल्यूएस कोटा आ रहा है। बाकी जितने भी स्टेट गवर्नमेंट की और कॉर्पोरेशन गवर्नमेंट की कॉलेज है ऑल इंडिया में, उस पर तो नहीं आ रहा है। मगर महाराष्ट्र के अंदर जितनी भी कॉर्पोरेशन और स्टेट गवर्नमेंट की गवर्नमेंट कॉलेजेस में ईडब्ल्यूएस कोटा है, प्राइवेट कॉलेज की अगर सीटें बढ़ती है तो ईडब्ल्यूएस कोटा आएगा। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट प्राइवेट में सीट नहीं ले सकता है, वो ले सकता है एज ए ओपन, और उसको फीस भी आप पे करना है। मतलब डबल फायदा है, एक तो आपको फीस भी आधी पे करना है और गवर्नमेंट में रिजर्वेशन भी है आपको। Thank you. Another question. All India rank 46,519, marks 553. Is it possible to get a government medical college in Maharashtra? देखिए बहुत डिफिकल्ट बॉर्डर लाइन पे। मुझको तो लगता है कि उनको गवर्नमेंट कॉलेज का चॉइस फिलिंग करना चाहिए, साथ में प्राइवेट कॉलेज के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो बॉर्डर लाइन पे। मुझको तो नहीं लगता कि 40,000 तक महाराष्ट्र का कभी, 44 तक महाराष्ट्र का कभी जा सकता है। तो उनको अपने बारे में सोचना चाहिए इसके ताल्लुक से। दूसरा भी है तो दूसरे कोर्स का भी डालना चाहिए, वो ना सिर्फ सोचे कि गवर्नमेंट मिलेगा, तेरे को नहीं मिला तो उनका पूरा एकेडमिक ईयर वेस्ट जाएगा। Okay. हेलो। So another question from Hadia Sheikh. If I get low marks in NEET but good marks in HSC PCB, will I देखिए get पीसीबी का मार्क्स सिर्फ ग्रुप क्लियर करने के लिए होता है। आपका जो एडमिशन होगा मेडिकल में वो नीट के बेस पे ही होएगा। अगर आपका पीसीबी में आपने 90% भी लेके आया है तो उससे कोई फर्क नहीं होने वाला। आपने नीट में कितने मार्क्स लाए, मतलब पीसीबी जो है वो पासपोर्ट है और ये जो है वीजा है। तो आपका वीजा जो है मेन क्या है, वो नीट का मार्क्स, नीट के मार्क्स पे एडमिशन मिलने वाला है आपको, अगर पीसीबी ग्रुप नहीं देखा जाएगा। Thank you. There's one question from Syed Muniza. Last year की लिस्ट के अकॉर्डिंग 1100 के अराउंड EWS रैंक आ रहा है when compared to my this year all India rank. Can I get private MBBS in Maharashtra? नहीं, अगर उन्हें ऑल इंडिया रैंक नहीं बताया तो बड़ा मुश्किल है उनके ताल्लुक से कहना। हेलो। या बोलिए। हाँ, बड़ा मुश्किल है उनके ताल्लुक से कहना। उनको ईडब्ल्यूएस का रैंक नहीं बताना चाहिए। देखिए कैटेगरी रैंक अगर 1000 है तो बहुत ज्यादा है। मुझको नहीं लगता कि 1000 कैटेगरी रैंक में उनको ईडब्ल्यूएस प्राइवेट कॉलेज में मिलेगा। Thank you. Can you just tell about a gap certificate and character certificate? How can we form character?
देखिए गैप सर्टिफिकेट का तो मैंने आंसर दे दिया हूं। मैंने बहुत ज्यादा इसके ताल्लुक से लोग मतलब कैंडिडेट ऐसे परेशान रहते हैं, जबकि बहुत बिल्कुल इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है। अगर आप मेरे पास नहीं भी है तो आपका एडमिशन हो जाएगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी, ये भी कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है। कॉलेज वाले क्या करते हैं, कैरेक्टर सर्टिफिकेट लाते हैं, जो आपकी जो प्रीवियस कॉलेज होती है या स्कूल है, वहां से जाके लेके आना है कि आपको एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट बना के टीचर आपकी हेड मास्टर्स दे देगी कि हाँ ये स्कूल के अंदर इनका कैरेक्टर बड़ा अच्छा था। एक छोटा में सिंपल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको बना के डालना है, और ये सब सर्टिफिकेट की वजह से आपका एडमिशन प्रोसेस में कोई तकलीफ नहीं आने वाली है, आप समझ लीजिए। आप अगर इसको एडमिशन लेने के बाद में भी रिक्वेस्ट करेंगे हम 10-15 डेज बाद ला के देंगे तो भी एडमिशन मिल जाएगा। Thank you. Another question from anonymous attendee. जैन माइनॉरिटी के लिए रिजर्व्ड कॉलेजेस कौन से हैं and can we repeat NEET with commerce course like BCom, BBA just for 1 year? देखिए जैन माइनॉरिटी का तो हमें पता ही है कि जो सुमनदीप जो कॉलेज है ऑल इंडिया के अंदर, जो डीम यूनिवर्सिटी है वो जैन माइनॉरिटी की कॉलेज है, और उसमें 50% जो सीट है वो जैन माइनॉरिटी के लिए होती है। तो सुमनदीप को ट्राई कर सकते हैं, डीम यूनिवर्सिटी है, फीस अगर अफोर्ड करते हैं तो सीट मिलने के चांसेस उनके हैं वहाँ पे। और अगर वो कॉमर्स कर रहे हैं और उसके साथ में भी नीट दे रहे हैं तो जा सकते हैं, मगर उन्हें 12th में उनका पीसीबी मतलब ग्रुप क्लियर होना चाहिए, और 12th में उन्होंने क्या फिजिक्स केमिस्ट्री 12th में उनका फिजिक्स केमिस्ट्री बायो होना चाहिए। अगर है और बाद में वो कॉमर्स में भी जा रहे हैं तो नीट दे सकते हैं। Thank you. Another question. सर अगर एनआरआई कैटेगरी हो तो ओपन में एडमिशन ले सकते हैं क्या डीम्ड में? बिल्कुल ले सकते हैं ना, अगर आप एनआरआई भी कैटेगरी में हैं। बहुत सारी अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा है, यहाँ पे जितने भी एनआरआई कैंडिडेट होंगे उनका बहुत ज्यादा मतलब फायदा हो जाएगा। एनआरआई के नाम पे काउंसलर लोग 5 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए चार्ज करते हैं, और सिर्फ ये जो बाद में बताने जा रहा हूँ वो बताते हैं उनको सिर्फ। आपने बड़ा अच्छा किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया है। क्या करना है मालूम, सिंपल आपको, जब आप वहाँ पे चॉइस फिलिंग करने जाएंगे वहाँ पे 2 कैटेगरी दिखाएगा आपको, एक एमएनजी दिखाएगा और एक एनआरआई दिखाएगा। तो आप एनआरआई को अंदर फॉर्म ही मत फिलअप करना, वहाँ पे डालना ही नहीं एनआरआई कैटेगरी, एमएनजी में डालना। ऑल इंडिया के अंदर आप आइदर एनआरआई में भी अप्लाई कर सकते हैं, और एमएनजी मतलब मेरिट एंड पेड सीट बोलते हैं इसको, मैनेजमेंट कोटा नहीं बोलते, मेरिट एंड पेड सीट, वो भी अप्लाई, वो इसमें भी एडमिशन ले सकते हैं, बाई डिफॉल्ट ले सकते हैं आप। अगर आपका मेरिट अच्छा है तो आप, मगर आपको क्लिक करना है एमएनजी। आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा, आपको क्या क्लिक करना है, वहाँ पे एमएनजी क्लिक करना है। हाँ, और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी एनआरआई सीट है वहाँ पे, वो भी ले सकते हैं आप, जाइए। Thank you. Another question from Rutuja. All India rank is 1,27,865, 454 marks. Should I repeat? I'm already a 1-year dropper. देखिए ये रिपीट, एक बार रिपीट तो बेटर रहता है। अगर आप इसी, ये देखिए आप क्या हो गया, आप मैं बताऊं आपको, सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था कि 3 टाइम के बाद कोई भी ज्यादा रिपीट नहीं कर सकता। ये कोचिंग वाले चले गए पूरा जाके, वो उसको डिसीजन को लोगों ने स्क्रैप करा दिया, ये कोचिंग क्लासेस वाले। और इतना हमने एक प्रेशर बना दिया एमबीबीएस के लिए, बच्चे 1 टाइम रिपीट कर रहे, 2nd टाइम कर रहे, 3rd टाइम कर रहे, पैनिक हो रहा है, उनको एंजाइटी बढ़ रही है, पेरेंट्स परेशान हो रहे हैं। और कोचिंग वाले चाहते हैं कि एक एक स्टूडेंट को एक बार नहीं 2-2 3-3 बार लोग स्टडी करवाए, 2-2 बार पढ़ाए और 3-3 बार 2-2 बार पैसा ले उनसे। मैं कहता हूं अगर आपने एक बार रिपीट कर लिया इनफ, उसके बाद अगर आपको, अगर पूरी 100% आपने दिया था तो जो कोर्स मिल रहा है उसमें एडमिशन ले लो। इसको आप मतलब क्या करें, कंपटीशन को आप बढ़ाते जा रहे हो, आप रिपीट कर रहे हो। अभी देखिए 16 लाख थे, फिर 18 लाख होंगे, 22 लाख होंगे, सीटें हमारे हाथ में उतनी ही है, कंपटीशन बहुत बढ़ने वाला है। 600 मार्क्स लाने के बाद ये देखिए आज की तारीख में एडमिशन मिलना भारी पड़ रहा है, प्रॉब्लम आ रहा है आपको। आप सोच लीजिए, आप अगर आपको करना है तो अलग बात है, 460 है, आप कितना इंप्रूव कर सकते हैं आपको मालूम है। मेरे हिसाब से तो आप देखिए एमबीबीएस जितना सक्सेसफुल डॉक्टर है उतना बीडीएस करके भी बन सकते हैं, बीएमएस करके भी बन सकते हैं, बीएचएमएस भी करके बन सकते हैं, और बीएमएस भी करके बन सकते हैं। आपकी लक आपके हाथ में है, आप प्रैक्टिस कितनी अच्छी करते हो उस पर डिपेंड है। एमबीबीएस से बिगिनिंग है, उसके बाद पीजी करना है, उसके बाद सुपर स्पेशलिटी भी करना है आपको, ये बात का ख्याल रखिए। Thank you. Another question from Harshal Kalwani. Sir, I'm confused between Group A and Group B counseling. Can you please explain? देखिए ग्रुप ए और ग्रुप बी जो काउंसलिंग है वो जो महाराष्ट्र स्टेट की आती है, मैंने उसको बहुत अच्छे से वीडियो बना के एक्सप्लेन किया हूँ मैंने। और आप अगर पहले राउंड में अगर आपको एमबीबीएस बीडीएस में मिलता है और प्राइवेट में मिलता है, और अगर बाद में आपको बीएमएस में मिलता है तो आप छोड़ के जा सकते हैं अच्छे से। मैंने उसके लिए बहुत अच्छा एक एक्सप्लेन किया हूँ मैंने। मेरा यूट्यूब चैनल है मुजफ्फर खान के नाम से, महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग प्रोसेस जो है
स्टेप उसको आप देख लीजिएगा उसमें वीडियो को, और उसमें बड़े ईमानदारी से बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया उन्होंने, आप देख लीजिएगा प्लीज उसको एक बार। Thank you. Ajmeri Muhammad Anas is asking, should I apply for AIQ? देखिए AIQ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं। देखिए AIQ में पहला समझ लीजिए कि कौन कौन सी कॉलेज होती हैं। पहले मैंने बताया कि 15% जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज की सीटें होती है वो AIQ अंदर है। 100% सेंट्रल यूनिवर्सिटी की सीट है। अभी आप देख लीजिए कि लास्ट ईयर में 12,638 को जो AIQ में लास्ट सीट मिली थी सेकेंड राउंड के अंदर। सीटें टोटल AIQ में थी लास्ट ईयर सब मिला के 5,000 सीटें थी। ये साल हो जाएगी बहुत ज्यादा से ज्यादा 7,000 नियर अबाउट सीटें। 2,000 सीटें अगर समझो बढ़ जाती है तो उसी कैलकुलेशन को आप पकड़ेंगे तो AIQ कट ऑफ जाता है 18,000 मैक्सिमम जाएगा, वो भी सेकंड राउंड में। मुझको नहीं लगता कि 18,000 भी क्रॉस करेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि आपका अगर रैंक अगर ऑल इंडिया 30,000 एक में बेंचमार्क पकड़ा हूं तो आप जाके पार्टिसिपेट कीजिए, अपने लक को आजमाइए। अगर उतना रैंक नहीं है आपका तो आपकी मर्जी, मैं तो किसी को रिकमेंड नहीं करता हूं, क्योंकि आपको देखे काउंसलिंग में हमको ये समझना है कि हमारे रैंक पे हमको क्या मिलने वाला है। जब हमको पता है कि भाई लास्ट ईयर पे 12,000 पे क्लोज हो रहा है वो, और 12,000 पे भी क्लोज होके हमको अगरतला में कॉलेज मिली थी जहाँ पे 5 साल का बॉन्ड है आसाम के अंदर जाके। तो अगर आपका उतना स्कोर रैंक नहीं है तो आप जाएंगे तो बस एक फॉर्मेलिटी पूरी करेंगे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि आपका एडमिशन कहाँ मिलने वाला है। Hope you got the answer. Thank you. Will EWS be followed in next 4 to 5 years if it gets cancelled? Then how? देखिए EWS कैंसिल होने के चांसेस खत्म हो चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और इकोनॉमी वीकर सेक्शन जो है, ये कोटा जो है, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बड़ा अच्छा लेके आया हुआ है। अगर ये सही से इम्प्लीमेंट हो जाए, सही से इम्प्लीमेंट मतलब किस तरीके से कि वाकई में कोई कास्ट हो, कोई भी रिलीजन हो, अगर उसमें कोई बैकवर्ड है और उसको अगर कोई रिजर्वेशन, देखिए रिजर्वेशन जो होना चाहिए वो बैकवर्डनेस पे होना चाहिए कि फाइनेंशियली अगर बैकवर्ड है वो, और उसको अगर आप अपलिफ्टिंग करने के लिए अगर कोई कोटा लेके आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। मुझको तो लगता है कि अगर किसी की फैमिली इनकम अगर बैकवर्ड है, अगर वो उसकी इकोनॉमी इतना स्ट्रांग नहीं है और उसके लिए कोई कोटा लेके आ रहा है, और वो भी कैसा है कि आप कोई भी रिलीजन में हो, कोई भी कास्ट में हो, और आपके पास पहले से कोई रिजर्वेशन का पावर नहीं है, मतलब कोई रिजर्वेशन था नहीं पहले आपको, और अगर आपको बेनिफिट 10% का अगर गवर्नमेंट दे रही है, तो मुझको तो लगता है ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव था हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब का, और इसका अच्छा रिजल्ट देखने भी मिल रहा है हमें। तो मुझको तो लगता नहीं कि फ्यूचर में कभी कैंसिल हो सकता। बस ये है कि इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करा जाए ईमानदारी से। सिर्फ बैकवर्ड जो इतने भी बेचारे हैं, जो अब देखा क्या गया है कि जिनके पास इनकम है, सब कुछ है, वो EWS सर्टिफिकेट बना रहे, फेक बना रहे, वो गलत है। तो इसको हमको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है। वाकई में जिसकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है उसी को उसका फायदा मिलना चाहिए, और जो रिच लोग हैं जिनकी फैमिली इनकम ज्यादा है और झूठे सर्टिफिकेट बना रहे हैं, उससे बचना चाहिए हमें। Thank you. If a reserved candidate gets more marks than a general candidate, the reserved candidate gets seat in open category or reserved only? नहीं, देखिए बाय डिफॉल्ट रिजर्व कैंडिडेट को जो ओपन जो होता है वो ओपन टू ऑल होता है। आप मेरिट के ऊपर कोई भी रिजर्व वाला ओपन की सीट ले सकता है, और कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट ओपन की सीट ही देगा उसको, क्योंकि पहला ही ओपन देखते हैं उन लोग। तो रिजर्व वाला अच्छे मार्क्स आएंगे तो ओपन की सीट ले लेगा वो। Okay. Another question is migration certificate required for all India quota to get a seat outside Maharashtra? देखिए अगर आपका स्टेट चेंज हो रहा है, यूनिवर्सिटी चेंज हो रहा है, तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा, ये आपको रिक्वायर लगेगा, मगर ये एडमिशन होने के बाद आपको देना है, इसको टाइम मिलेगा आपको। Okay. Sir, can you please throw some light on NCL for OBC? हाँ, नॉन क्रीमी तो देना ही है ना आपको, उसके बगैर तो आपको तो ओबीसी का बेनिफिट ही मिलेगा। अगर आपकी 8 लाख के बिलो कम इनकम है तो ही आपको ओबीसी का बेनिफिट। नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट उसका फुल फॉर्म है। तो एनसीएल अगर आपने नहीं बनाया तो आपको ओबीसी का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट कैसे बनवाए, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी कैंडिडेट को माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है क्या? अगर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना है उसको, तो फिर माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अपलोड करना जरूरी है।
अगर वो नहीं चाहता है माइनॉरिटी सर्टिफिकेट एडमिशन लेना माइनॉरिटी कॉलेजेस के अंदर, तो वो नहीं करे, चाहे वो ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, कोई भी कैंडिडेट है। माइनॉरिटी कॉलेज में जिसने माइनॉरिटी सर्टिफिकेट अपलोड करेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, उसी को एडमिशन मिलेगा, वरना तो एडमिशन नहीं मिलेगा उसको। सिंपल है ये। और माइनॉरिटी सर्टिफिकेट का एक एफिडेविट आता है जिसका मैंने अपनी वेबसाइट पे डाला हूँ। 100 रुपये के स्टाम्प पेपर टाइपिंग करना रहता है कि मैं मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करता हूँ, मुस्लिम हूँ, और हमारी मुस्लिम जो है माइनॉरिटी कम्युनिटी है, बस। और इसको नोटरी करके अपलोड कर देना है। Okay. Can you please guide me through BUMS in Hyderabad? देखिए, ऑल इंडिया कोटे से आप बीयूएमएस की सीट हैदराबाद में ले सकते हैं आप। मैं जैसे कहा ना कि ऑल इंडिया कोटा होता है, वहाँ पे बीयूएमएस के अगर आपको कॉलेज में एडमिशन हैदराबाद में लेना है तो आप हैदराबाद में जाके ले सकते हैं, वहाँ से ऑल इंडिया कोटे से ले सकते हैं अगर महाराष्ट्र स्टेट के अंदर है। और अगर आप तेलंगाना में है तो डायरेक्ट वहीं के स्टेट काउंसलिंग में अप्लाई करके ले सकते हैं। Thank you. Another question from Rohit. What if I got admission in course such as BHMS or BAMS and I appeared for NEET, and if I try again side by side for NEET again and score good marks and eligible for MBBS, can I leave college for MBBS course? देखिए, आप कॉलेज को तो छोड़ सकते हैं और एग्जाम भी दे सकते हैं। मैंने आपको बताया था ये, इसके तौलिक से मैंने बहुत सारा आर्टिकल लिखा हूँ मैंने, क्योंकि रेगुलर क्वेश्चन मुझको आते हैं। मैंने इसमें अपनी वेबसाइट पे आर्टिकल लिख के भी डाला हूँ, सब कुछ है। अगर कोई ने भी कैंडिडेट ने बीडीएस में एडमिशन लिया है, बीएमएस में लिया है, बीयूएमएस में लिया है या बीएचएमएस, मतलब एमबीबीएस को छोड़ के कोई भी कोर्स में एडमिशन ले लिया है, वो रिपीट कर रहे आ रहा है, नीट रिपीट नेक्स्ट ईयर नीट का एग्जाम दिया, अच्छे मार्क्स आ गए, लेने आ रहा है एडमिशन, तो जो कॉलेज में एडमिशन लिया है वो कॉलेज में जितने भी बैलेंस ईयर की फीस है उसको पे करना रहेगा, पहली बात तो। उसके बाद महाराष्ट्र में अगर वो एमयूएस से एडमिशन लिया हुआ है, काउंसलिंग के थ्रू लिया है, तो 2 साल के लिए बैंड लगा देती महाराष्ट्र, क्योंकि वो सीट छोड़ देगा तो एक कैंडिडेट का नुकसान करेगा किसी का। अगर उसको कैसे ही करना है तो पहली बात तो सीट ही मत ले, क्योंकि वो सीट तो आपको या तो आपको गवर्नमेंट में सीट में लिए तो पेनल्टी पे करना रहेगा 10 लाख रुपीज, और अगर प्राइवेट में लिए तो 4 इयर्स की फीस पे करना है, और ऑल इंडिया कोटे से एडमिशन मिलेगा, महाराष्ट्र में नहीं मिलेगा आपको। Thank you. Habiba is asking, her sister scored 511 marks and EWS quota and ranked 9,000. What are the chances in government? 9,000 रैंक नहीं है उनका, पहला उन्होंने रैंक ही अपना गलत बताया। देखिए, आप खुद अपने आप को जज नहीं कर पा रहे बेटा, आप लोग समझो कि रैंक यहाँ पे ऑल इंडिया रैंक आप बता देते, मुझको पहले ही मालूम पड़ जाता। 50 रैंक पे वैसे भी आपको यहाँ पे मुझको मुश्किल लग रहा है कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी होने के बाद भी आपको यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज में तो ईडब्ल्यूएस कोटा इम्प्लीमेंट, मतलब सीटें बढ़ रही नहीं तो आने वाला नहीं है, आपको जनरल ओपन ही सीट लेना है। और मैंने बेटा सब आप लोगों के लिए, देखिए अपने आप को आप जज करो, पहचानो। मैंने सारी चीजें आप लोग को बता दिया हूँ कि कितने में क्या क्लोज होने वाला, गवर्नमेंट कितने में क्लोज होएगा, ऑल इंडिया कितने में क्लोज होएगा, एमबीबीएस कितने में क्लोज होएगा, बीडीएस कितने में क्लोज होएगा, बीएचएमएस। बेटा आप सबको पता है कि आपको खुद को मालूम है कि आपको मिल रहा है कि नहीं एडमिशन मिल रहा है, और ये मालूम करना बहुत जरूरी है आपको। अगर मालूम है कि नहीं मिल रहा है तो आप रिपीट में जाओगे या दूसरे कोर्स में एडमिशन लोगे। मैंने कितने बच्चे देखा हूं ऐसे जिन लोगों को पता नहीं रहता था और लोग एडमिशन सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज प्राइवेट कॉलेज डाल देते, एडमिशन मिलेगा नहीं आपको, लास्ट तक आप वेस्ट करते रहेंगे, स्टडी भी चालू नहीं करेंगे। तो आप सोच रहे हैं कि आपको गवर्नमेंट में भी या मिलेगा या प्राइवेट में मिलेगा, तो एमबीबीएस मुश्किल लग रहा है, दूसरे रिसोर्सेज को भी आप तलाश करो। हेलो हेलो Hello. Yeah. हेलो। Can we put UP states colleges in all India quota? देखिए, अगर गवर्नमेंट कॉलेज है तो डाल सकते हैं आप, जितनी इंडिया में जितनी भी गवर्नमेंट कॉलेज है सारी वहाँ पे रहेगी ऑल इंडिया कोटे में, और कोई भी स्टेट में जाके आप एडमिशन ले सकते हैं वहाँ ऑल इंडिया कोटे से, कोई भी स्टेट में जाके। अगर प्राइवेट कॉलेज है तो प्राइवेट कॉलेज कोई भी ऑल इंडिया में नहीं होती है, तो उसकी अगर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो रिस्पेक्टिव स्टेट में जाके अप्लाई करना है। Which students are supposed to make gap certificates? गैप जिसका हुआ है, एजुकेशनल गैप हुआ है वही देगा। गैप सर्टिफिकेट का फुल फॉर्म ये कि अगर एजुकेशनल गैप हुआ है तो ये रिक्वायर है, वरना नहीं रिक्वायर है आपको। Thank you. When there, हाँ चलिए पूछिए। Can I get a government college in Maharashtra under state quota with rank around 84,000? मुश्किल है बहुत ज्यादा, एमबीबीएस की बात कर रहे तो बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। वही बात आ जा रही है, अगर आप इतना जज नहीं कर पा रहे अपने आप को, लास्ट टाइम पे क्लोज हुआ था कुछ 34,000 पे क्लोज हुआ था,
इतनी सीटें तो नहीं बढ़ने वाली है कि इतना ज्यादा। मैंने एक प्रिडिक्शन बना के अपना डाला हूँ, मेरा प्रिडिक्शन है 37,000 से लेकर 42,500 के बीच में या 43,500 के बीच में क्लोज होगा महाराष्ट्र का। आप उसको देख लीजिएगा। Okay. Is there any difference between a MBBS degree obtained from government medical college or private or deemed medical college? कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अभी तो नेक्स्ट का एग्जाम आ गया, आपको पता होना चाहिए बच्चे लोग, मतलब जितने भी कैंडिडेट है, कि आप गवर्नमेंट से कर रहे हैं कि प्राइवेट से कर रहे हैं कि डीम से कर रहे हैं। फाइनल एग्जाम जो अभी देना है आपको, वो ऑल इंडिया जैसा अभी लेवल का एग्जाम होता था ना, अभी नीट का दिया आपने, वैसे एक नेक्स्ट का एग्जाम आ गया। फाइनल एग्जाम आपको उसी का देना रहेगा, डिग्री भी वहीं से आने वाली है आपकी अभी, तो कोई डिफरेंस नहीं रहने वाला है। नेक्स्ट का एग्जाम आपको सारे इंडिया को, चाहे वो एम्स में पढ़ रहा है, जिपमार पे रहेगा, सबको नेक्स्ट का एग्जाम ही देना रहेगा। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट। Thank you. I've got 71,561 All India rank and belong to NTC caste of Maharashtra. What are my chances of getting into government medical college for MBBS? जब तक कैटेगरी रैंक नहीं आएगा मैं उनका नहीं कह सकता हूँ। NT2 के NT3 कैटेगरी की जो बात कर रहे हैं, उसमें कितना उनका कैटेगरी रैंक आता है, कितने स्टूडेंट NT3 के उनसे ज्यादा मार्क्स लेके आए हुए, वो उसके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। जब तक वो मेरे पास कैटेगरी रैंक नहीं आएगा, और अभी कैटेगरी रैंक उनका रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आने वाला है, तो मुझको तो लग रहा है अभी भी उनको चांसेस बहुत कम है, डीम चांसेस है उनके। Sir, do you have any idea of minority colleges की कट ऑफ क्या है राजस्थान में? देखिए, पहली बात तो राजस्थान में माइनॉरिटी कॉलेजेस मतलब कौन सी माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी तो बहुत सारी कॉलेजेस होती है। जैन माइनॉरिटी होती है, मुस्लिम माइनॉरिटी होती है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी होती है। किसकी बात कर रहे हैं वो? राजस्थान में तो मुझको लगता नहीं है कि कोई मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज है वहाँ पे। AMU and BHU के फॉर्म सेपरेटली फिलअप करना है क्या? नहीं ना, सेपरेट का ऑल इंडिया काउंसलिंग में ना, बताया ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जितनी भी है सब ऑल इंडिया काउंसलिंग के अंदर है। Sir, medical fitness certificate, is it required during counseling or during admission? नहीं, आपको यहाँ पे जब आप महाराष्ट्र में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे तो आपको अपलोड करना रहेगा, जब भी आपको अपलोड करना है। हेलो, Yeah, just a moment. Most of the questions are now repeated question. हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं, और मैं वही मैं चाह रहा था कि आप एक वाइंड अप कर ले सकते हैं। हमने बहुत सारे आंसर तो पूरे दे दिए हैं सबको। मेन सारे लोगों के डाउट्स क्लियर हो गए हैं। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मेरे को लगता है कि आपने सब समझ लिया होगा कि एडमिशन प्रोसेस कैसा होने जा रहा है, आपके क्या मार्क्स आए हैं। अगर आपने MBBS के लिए समझो एक बार रिपीट कर चुका है, अनफॉर्चुनेटली आपके मार्क्स नहीं आ रहे, मैं तो कहता हूँ कि BDS कर लीजिए, आप BMS कर लीजिए, BUMS कर लीजिए, फिजियोथेरेपी कोर्स कर लो, बहुत अच्छे कोर्सेस है, इसमें आराम से एडमिशन मिल जाता है आपको। इस रेस से बाहर आ जाइए प्लीज आप। There is one question. What would you recommend to me, sir? BUMS is good or physiotherapy? देखिए, BUMS और फिजियोथेरेपी के अंदर आप दोनों अच्छे कोर्सेज है। अगर BUMS कर लेते हैं तो एज ए डॉक्टर आप अपने आप को कहला सकते हैं, और फिजियोथेरेपी अपने आप को डॉक्टर नहीं कहलाते हैं। सब लोग कहते हैं मगर ऑफिशियली आप डॉक्टर लगा नहीं सकते हैं। मगर दोनों हाईली मतलब अच्छे कोर्सेज हैं। मैं तो ज्यादातर अगर BUMS कोई अच्छी कॉलेज में मिल रहा है तो आप ले लीजिए, वरना फिजियोथेरेपी अगर आप बाहर जाने का इरादा रखते हो, आउट ऑफ इंडिया जाना चाहते हो, तो आप फिजियोथेरेपी जाइए। Okay, and is there any security deposit for AIQ private college? And if मैं कहा प्राइवेट कॉलेज ऑल इंडिया में एक भी नहीं होती है, एक भी प्राइवेट कॉलेज आपको ऑल इंडिया में नहीं मिलेगा। तो आप वहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट की बात ही क्या आएगी? वहाँ पे सब गवर्नमेंट कॉलेज है और डीम है। डीम के लिए 2 लाख सिक्योरिटी डिपॉजिट है और 10,000 डिपॉजिट है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। प्राइवेट कॉलेज कोई नहीं मिलने वाला वहाँ पे ऑल इंडिया कोटे के अंदर। Is domicile necessary for all India counseling? ऑल इंडिया सबके लिए ओपन है, पूरे इंडिया वालों के लिए ओपन है। वहाँ पे डोमिसाइल कैसे लगेगा? सिर्फ वहाँ पे सिर्फ यही है कि वो इंडियन हो या NRI हो, बस सबके लिए ओपन है वो। Okay, I do not see any further questions. All are the repeated ones now. हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। Do you have any idea of cutoff for Symbiosis deemed college? देखिए, सिम्बायोसिस डीम कॉलेजेस फर्स्ट टाइम एंट्री कर रहा है, उसके कट ऑफ का अंदाजा लगाना इतना आसान नहीं है। उसने फीस जितनी भी डीम कॉलेजेस एट प्रेजेंट इंडिया में सबसे कम फीस सिम्बायोसिस की है।
अभी अनफॉर्चुनेटली जिसके मार्क्स कम आए हैं, जिसको गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, प्राइवेट कॉलेज नहीं मिल रहा है, अनफॉर्चुनेटली उसको डीम कॉलेज में जाना पड़ेगा। देखिए होता क्या है कि मेडिकल एजुकेशन जो हो गया है ना, वो कमर्शियलाइज इतना ज्यादा हो गया, इसकी इतनी डिमांड बढ़ चुकी है कि आपने फीस की अगर रेंज सुनेंगे तो पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में इतनी ज्यादा फीसेस मेडिकल एमबीबीएस की कहीं पे भी नहीं होती है। आप अगर देखेंगे तो डीम कॉलेजेस 20-25 लाख रुपए चार्ज कर रही है, तो सिम्बायोसिस ने 10 लाख रुपया रखा हुआ है। तो मुझको तो नहीं लगता है कि सिम्बायोसिस का किसी का अगर 450 मार्क्स भी आ रहा है तो सिम्बायोसिस उसको मिल जाएगा, मुझको नहीं लगता है। और वुमेन्स कॉलेज है, सिर्फ वुमेन्स के लिए है, मुझको नहीं लगता है कि 450 के नीचे जाएगा, उसका 450 के आवाज ही रहने वाला है सिम्बायोसिस का। Okay. Sir, can you please, you mentioned about NRI seats in government college. Can you just highlight it once more? देखिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में है, जिपमार में है, बहुत सारी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर अली। आप देखिए, मैं बोलता हूँ मैं एडमिशन प्रोसेस को बहुत डीपली फॉलो करता हूँ, मैं छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता हूँ। मैं बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर की बात है मेरे पास, आप देखिए कि एम्स जैसा कॉलेज लास्ट ईयर एम्स के अंदर 9 सीट वेकेंट जाना कितनी बड़ी बात। आप सोच सकते हैं, इसको मालूम है आपको कि एम्स टॉप मोस्ट कॉलेज इंडिया का, उसमें 9 सीट वेकेंट चले गई। क्यों चले गई? आप कभी सीट मैट्रिक्स को देखते नहीं है, आप नोटिफिकेशन को बाद में देखते नहीं है, आप जैसा एक राउंड होता है, 2 राउंड होता है, आप चुप हो जाते हैं कि हमको एडमिशन नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं है, एडमिशन प्रोसेस में लास्ट तक चांसेस रहते हैं। आप नई नई जितनी कॉलेज आती है, लास्ट ईयर की कॉलेज एक आई थी, मैं बता रहा हूँ आपको, वो मुस्लिम माइनॉरिटी कॉलेज थी, वो आई थी हिमाचल प्रदेश में, अल फला नाम था। पहले राउंड में देखे तो उनको सीट ही फुल नहीं हुई इनकी, टोटल 34 सीट गई। तो उन्होंने मुझको फोन किया कि हमारी तो सीटें नहीं जा रही, तो उनके बारे में मालूम पड़ा कि मैं हेल्प करता हूँ। तो मैंने अपने ग्रुप के अंदर कहा कि जिनको भाई जाना है, 14 लाख में सीट मिल रही है, आप एजेंट के थ्रू जा रहे हो, एजेंटों को पैसा दे रहे हो, वो एजेंट 1 करोड़ मांग रहा है, 1-10 मांग रहा है, क्यों आप ब्लैक मार्केट कर रहे हो? वहाँ पे 14 लाख में सीट मेरी सेकंड राउंड में फुल हो गई। आप जब सीट मैट्रिक्स ऑल इंडिया में आएगी तो देखिएगा कितनी गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर एनआरए की सीट रहती है। अप्लाई कीजिए, फीस स्ट्रक्चर भी दिया रहता है, सारी चीज ट्रांसपेरेंट रहती है। अगर आप देखना चाहेंगे ना वहां पे, तो पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूट के अंदर क्लिक करके देखो, आपको सब मालूम पड़ जाएगा। आप मेडिकल एजुकेशन के नाम पे क्लासेस से लेकर, काउंसलर से लेकर, कॉलेज वालों से लेकर, हम सब क्या कर रहे हैं, कमर्शियलाइज हो गए बिल्कुल। सब हमने अपने चार्जेस बढ़ा दिए हैं, सब मतलब भी बच्चों को लूट रहे हैं हम, बिल्कुल भी इतना कमर्शियलाइज कर दिया इसको पूरा। तो आप वहाँ पे अच्छे से देखिएगा, आपको वहाँ पे मालूम पड़ जाएगा पूरा। थोड़ा रिसर्च करने की जरूरत होती है बस। There's one question from Hadia Sheikh. She's more asking for guidance, saying, I'm in 12th right now and I'm thinking of taking a year's break. Should I take a break or attempt the NEET 2020 just to get to know the pattern? As नहीं, also I'm पैटर्न not के लिए prepared. आपको देखिए, आप क्या कीजिए मालूम क्या, पेरेंट्स को चाहिए कि स्टडी के ये जो काउंसलिंग प्रोसेस में पार्ट ले, और जो जो कैंडिडेट है, जो स्टूडेंट है, उसको स्टडी चालू करना चाहिए। अगर आप ये साल पैटर्न देख लेंगे तो नेक्स्ट ईयर आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट देगा, फायदा देगा, आपको मालूम पड़ जाएगा कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसा रहता है। मैं बताया ना कि लास्ट में कैसा होता है। ये साल भी मैं गारंटी से बोल रहा हूँ, ये साल में मैं गारंटी से बोल रहा हूँ कि जो पैटर्न जो आया है ना ये साल भी काउंसलिंग का, बाद में एम्स के अंदर भी सीटें किसी को मिलेगी, देखना उसका रैंक सरप्राइज रहेगा कि हमको एम्स के अंदर इतने कम मार्क्स में, इतने मतलब कम बोले तो इतना कम भी नहीं, मतलब 10,000 वाले को भी एम्स के अंदर सीट मिल सकती है। जिसने ऑल इंडिया रैंक 10,000 लाया ना, उसको भी एम्स पे सीट मिलेगी। Thank you. Sir, do overseas citizen of India, OCI candidate, have a chance at getting government quota seat through? हाँ हाँ, ओसीआई ले सकता है ना यहाँ पे, जैसा एनआरआई ले सकता है वैसा ओसीआई भी ले सकता है, और ओसीआई तो यहाँ पार्टिसिपेट भी कर सकता है महाराष्ट्र स्टेट काउंसलिंग में। नेक्स्ट क्वेश्चन हम अभी अब कर इसको भी one last question that I'll take for the day because I do not see any further more questions. So please guide, should I apply in AIQ for Mumbai College? My all India rank is 16,000. देखिए 16,000 में मुंबई में क्या मिलेगा उनको ऑल इंडिया कोटे से? जैसे मैंने कहा था कि लास्ट ईयर 12,600 वालों को आसाम के अंदर अगरतला में कॉलेज मिला था। मुंबई तो 2-3,000 में खत्म हो जाएगा ऑल इंडिया कोटे के अंदर। तो बेटर ये है कि उनको स्टेट काउंसलिंग से जाके अप्लाई करना चाहिए, और अगर स्टेट में अप्लाई करना चाहिए, और अगर ऑल इंडिया में अप्लाई भी कर रहे हैं तो अपना चांस लेके देखो, आगे फ्यूचर में पीजी काउंसलिंग में काम आएगा आपको। मगर आप सोचेंगे कि वहां से मिल जाएगा,
मिलने के 0% चांस भी नहीं है। ओके, और सर BUMS अगर लेते हैं तो आगे चल के MD कर सकते हैं? क्या आपने बताया, आपने क्या कर सकते हैं? BUMS लेने के बाद में आगे MD कर सकते हैं? हाँ, उसी सेम पैथी में कर सकते हैं ना, आप क्यों नहीं कर सकते हैं? हर पैथी के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन का कोर्स कर सकते हैं। There's one question from Sana Afreen. She's from Karnataka and got 437 marks with 1,44,595 ranking. Can she get any college in Karnataka? यस, ऑफ कोर्स शी विल गेट, उनको प्राइवेट कॉलेज मिल जाएगा कर्नाटक के अंदर, क्योंकि वो कर्नाटक के कैंडिडेट है, GMP कोटे के अंदर आ रहे हैं। GMP कर्नाटका के अंदर ये बेनिफिट है कि कर्नाटक में 3 माइनॉरिटी मेडिकल कॉलेजेस भी हैं। कर्नाटक के अंदर नंबर ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस बहुत ज्यादा है और नंबर ऑफ गवर्नमेंट कॉलेजेस, मतलब पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कर्नाटक में सीट है और कर्नाटक के स्टूडेंट के लिए बड़ा बेनिफिट है, उनको मिल जाएगा कर्नाटक के अंदर। Okay, thank you so मैं much. नॉन कर्नाटकों को मिलेगा नहीं वहाँ पे। So that is all for Q&A from my end. There are few questions that has been raised in Q&A which were relating to scholarships. So if anybody wants to know about any scholarships in terms of their further education, they can write to us on scholarship@ampindia.org. We have our scholarship experts with us who would be in a better position to explain you and help you to get those scholarships for yourself. And we are also conducting webinars on scholarship every Sunday, so you can also attend one of those webinars in case if you're interested in scholarship for your further education. So this is all from my end. Thank you so much, Muzaffar Saab, for your expertise and sharing your viewpoints and helping the students. We understand that it was very difficult for you today, but it was an honor and a pleasure to have you with us. एक रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज प्रे फॉर मी कि जल्दी रिकवरी हो, जल्दी मैं वापस से बैक टू वापस प्रोफेशन ना जाऊं मैं। Okay, so I would request Mr. Abdul Razak Sheikh to share a few words before we end the session. Razak bhai? Razak bhai, you are on a mute. Yeah, thank you, Shehzad bhai. First, I would like to thank Muzaffar Khan sir for giving his precious time. और आप ने बहुत अच्छे तरीके से हमको बताया कि MBBS बच्चों को किस तरह से अपनी तैयारी करना चाहिए। नीट एग्जाम को पास करना तो इम्पोर्टेंट है, बट उसके अलावा भी आपने जो बताया काउंसलिंग में जिस तरह से ध्यान देना चाहिए कॉलेज सिलेक्शन में, कोर्स सिलेक्शन में, और अपने दिल में सिर्फ MBBS को लेके ना रुक जाए, उसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन है, बच्चों को उसको भी एक्सप्लोर करना चाहिए। दैट इज अ गुड आइडिया दैट यू गिव अबाउट टू द पार्टिसिपेंट हु हैव जॉइन्ड अस टुडे। AMP स्कॉलरशिप को लेके काफी अलग अलग प्रोजेक्ट रन करने की कोशिश कर रहा है ताकि बच्चों को हेल्प कर सके। शहजाद भाई ने बताया हमने जिस तरह से indiazakat.com बनाया है, एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि बच्चों को फीस में कहीं पे दिक्कत आ जाए, क्योंकि आज की तारीख में क्या होता है, एजुकेशन हैज बिकम वेरी एक्सपेंसिव और स्कॉलरशिप ये सारी चीजें जो मिलती है ये थोड़ा सा लैग टाइम पे मिलती है, इमीडिएटली मिल नहीं पाती है। और एडमिशन का जो कट ऑफ्स होते हैं बहुत शॉर्ट नोटिस के होते हैं, आपको इमीडिएटली कहीं ना कहीं करना होता है। तो indiazakat.com प्लेटफॉर्म के थ्रू हम लोग ने ये साल पे तकरीबन 4 IITian को हेल्प किया है और इंशाल्लाह हम चाहेंगे कि इस तरह से और बच्चों को हेल्प करें जिनको फीस की जरूरत है और बहुत अच्छे एजुकेशन लाने के बावजूद भी वो अपना एजुकेशन नहीं कंप्लीट कर पा रहे, तो वो प्लेटफॉर्म के तरीके से हमको हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी जो टीम है स्कॉलरशिप टीम, तो हर महीने स्कॉलरशिप के बारे में अपडेट रिलीज कर रही है, लोगों को बताने की कोशिश कर रही है। हमने टीम बनाई है जो बच्चों को हैंड होल्ड कर रही है कि किस तरह से स्कॉलरशिप को फॉर्म भराया जाए। तो एक हमारी कोशिश है कि बच्चों को वो इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए, बच्चों को हैंड होल्डिंग की जाए ताकि उनकी स्कॉलरशिप को लेके जो जरूरतमंद होती है, जो चीजें होती है वो हम लोग कर पाए। जो आज का वेबिनार था MBBS को लेके, इसी तरह से हमने और भी बाकी वेबिनार किए थे अलग अलग एजुकेशन को लेके, अलग अलग कंट्री को लेके। इसके पहले हमने किया था एजुकेशन रशिया, उसके पहले हमने किया था एजुकेशन इन यूरोप, राइट। तो अलग अलग कंट्री को स्पेसिफिक हम कर रहे हैं। इसी तरह से हम लोग आगे चल के भी अलग वेबिनार्स लेके आएंगे, MBBS इन एशियन कंट्रीज, MBBS इन यूरोपियन कंट्रीज, ताकि जो बच्चों को इंडिया में एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और उनको अगर इंटरनेशनल में एक्सप्लोर करना है तो हम कोशिश करेंगे उस लेवल का स्पीकर ले आए और जो आपको गाइड कर सके।
आज का पार्टिसिपेशन के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। स्पेशल थैंक टू मुजफ्फर खान सर जिन्होंने हमको गाइड किया। हम चाहेंगे मुजफ्फर खान सर हमसे जुड़े रहें ताकि आगे चल के भी हम लोग बच्चों को हेल्प करते रहें, और एमबीबीएस की फील्ड में जो रेस लगी पड़ी है उस रेस में इन बच्चों को अगर सही मेंटर मिल जाए तो इंशाल्लाह उनके लिए रास्ता भी आसान हो जाएगा। तो इंशाल्लाह। टू टॉक फ्रॉम माय साइड, थैंक यू। बैक टू यू मुजफ्फर सर, आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि आप लोगों, मतलब मैं तो पहले आपको बहुत बहुत मैं अप्रिशिएट करूँगा कि ये टफ सिचुएशन में आप लोगों ने जाके एग्ज़ाम दिया। कोविड की सिचुएशन थी, घड़ी घड़ी एग्ज़ाम पोस्टपोन हो रहे थे, आपने अपना मेंटल प्रेशर को बनाए रखना, इतनी टफ सिचुएशन में एग्ज़ाम दिया, उसके बाद भी जो भी रिजल्ट आया आपको उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, और जो भी आउटकम आ रहा है आप उसको एक्सेप्ट कीजिए, और उसको एक्सेप्ट करने के बाद जो आपको कॉलेज मिल रही है, जो कोर्स मिल रहा है, उसमें एडमिशन लीजिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाइए। अगर आपको एमबीबीएस मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो बीडीएस मिल रहा है, बीएमएस मिल रहा है, जो भी कोर्स मिल रहा है उसमें लीजिए। अगर आपको सेकंड अटेम्प्ट देना है तो जरूर जाइए, अभी से अपनी प्लानिंग करके रख लीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Thank you so much, Muzaffar Saab, and thank you so much, Razak Bhai, for your lovely words. And thank you so much to all the participants who gave their precious time. So I just want to convey a message that AMP organizes session by highly qualified professionals and experts in their particular field to share their learning and viewpoints, not to guide only the youths, but everyone with their own life's experiences. So we request you all to keep coming for these sessions. You can get all the updates regarding our upcoming webinars on our website, ampindia.org/AMP Web Talk. You will get all the updates regarding our upcoming webinars as well. You can register for those one of the webinars in case if you're interested in future. I would now request Mr. Muhammad Firoz Saab to please do a dua and we'll conclude the session. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من الرحمة إنك أنت الوهاب. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله العالمين. Thank you so much, Firoz Saab. And before we end the session, I would also like to thank Ms. Manal Mansoori, who actually on a last minute helped us to take throughout the session, and she stayed back through the session. Ms. Manal, thank you so much for your precious time as well. And thank you so much, everyone. You're most welcome, sir, anytime. So I'll be ending the session for all. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam.